عبد المطلب نے کہا کہ جب میرے 10 بچے ہو جائیں گے تو میں ایک کو اللہ کی نظر کے لیے وفا کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، ان میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے وفا نظر کیا، خواہش عمل. اس پہ عمل ہوا تو عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے سادن پجاری سے کہا کہ ان سب کے نام لے کے نکالو. سادن نے ان کا نام نکالا. سب سے پہلے عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ محمد کا باپ ہے، جس کو عبد المطلب سے خاص محبت تھی. ذبح کرنے کی چھری کے لیے یا سب لوگ میوٹ کر دیں، کسی بھی کتے چل رہے ہیں. عبد المطلب ان کا ہاتھ پکڑ قربان گاہ کو لے چلے. لڑکیاں یعنی عبداللہ کی بہنیں وہیں کھڑی رونے لگیں، اور ایک نے کہا اس قربانی کے بدلے کی تدبیر کرو کہ وہ حرام ہے، تیسا 7 اونٹیاں پاس ہے. سو عبد المطلب اتنے اچھے اور اتنے نیک دل تھے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو کعبہ کے اندر موجود ایک اور بت بال کے سامنے قربان کرنے کو تیار تھے. یعنی ذبح بچے کی قربانی دے رہے تھے، اپنے 10 بچوں میں سے ایک بچے کی قربانی. یہ عبد جی المطلب ہے بھائی. جی یہ عبد ابھی المطلب ان کی بات کر رہے ہیں آپ میرے سامنے. جی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر سے 1 منٹ لوں گا. نہیں، پھر سے 1 منٹ نہیں ٹھیک لے، ہے. پہلے بتائیں عبد المطلب اتنے اچھے شخص تھے کہ وہ بال ہاں خدا کے سامنے اپنے ہیومن بیٹے کی ہیومن سیکریفائس کر رہے ہیں. یہ آپ کی ہاں حجت ہے. عبد المطلب اتنے اچھے بچے تھے. ٹھیک ہے. ہاں میں اس بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈم بھائی، پلیز سنیے، کیونکہ سنائیے مجھے پورا نالج ہے اس چیز کا. عبد سنائیے المطلب کو پہلا خواب میں آیا ایک اللہ کی لینگویج، جو بھی وہ مجھے جو بھی آیا. یاد نہیں. اگر آپ تھوڑا ٹائم دو گے میں وہ ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے. ایک دن خواب آیا کہ آپ اوہا کھدائی کرو. انہوں نے بولا اس جگہ کی نام کیا ہے، وہ چلا گیا. دوسرا بھائی تیسرا یہ ایسا بتائیں، یہ بتائیں. 5واں دن چلا گیا. سنو، اور 7واں دن شاید آ کے بولا جمجم میں کھدائی کرو. انہوں نے سوال کیا جمجم کدھر ہے، تو ان کو وہ چیز بتایا گیا کہ جہاں پہ گندگی ہے اور کچرا پھینکتے ہیں اور کوے وہاں پہ مطلب آواز دے رہا ہے. تو انہوں نے جا کے ایسا ایک جگہ ملا جہاں پہ سب بال کے سامنے، اللہ کے سامنے یا حجاج کے سامنے جو قربانی کرتے تھے جانور، اور وہاں پہ گندگی پھینکتے تھے. تو عبد المطلب نے وہاں پہ کھدائی کرنا چالو کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں شارٹ کٹ میں بتاؤں گا، بیچ میں یہ قریش دیکھیں، یہ گیا، دیکھیں، یہ تھوڑا سنیں ذرا، حصہ پہلے داری یہ ہوا. سنیں، پہلے یہ سنیں. ہاں یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، لپیٹنا ہے. کہانی تے کہانی. یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں. جی سر، آپ کو سمجھ لگا آپ کیا ہاں کر رہے ہیں؟ جی تھوڑا سن لیجئے، شاید نہیں، میرے میں سے آپ کو یہ اگر بتا رہا غلط ہوں، ہوا تو. مجھے اس کے بارے میں بتائیں. کیا ہاں عبد وہی المطلب بتا رہا اپنے ہوں. بیٹے کی قربانی کر رہا تھا کہ نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. جی ایگزیکٹلی وہی بتا رہا ہوں میں آپ کر کو. رہا تھا نا؟ تھوڑا ٹائم دیجیے. ہاں تھوڑا ٹائم دیجیے، کیونکہ جب وہ کھدائی کر رہا تھا ان کے لیے تکلیف ہو رہا تھا. انہوں نے بولا یہ میرے پروردگار، یہ میرے خدا، اگر مجھے آسان کر دے میں اپنی 10 بیٹوں میں سے ایک کا قربانی کر دوں گا. اس طرح کرتے گئے، ان کو خزانہ ملا، تلوار ملا، پانی بھی مل گیا. ٹھیک ہے. میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ چیز، ایک اونٹ کا قربانی کیا، ایک بکری کا کیا، سب کچھ قبول نہیں ہوا. سپنا میں آیا اس سے بڑا کرو، اس سے بڑا کرو. تو فائنلی انہوں نے سمجھ گیا کہ ان کا بیٹا کیا وعدہ کیا تھا کھدائی کرنے کے ٹائم. پھر 200 بیٹا کو بلایا اور بولا میں نے ایسا وعدہ کیا تھا ایک بیٹا کا قربانی کرنا ہے. کس کو کروں؟ سب سے پہلے ہمارے نبی کی پتا جی محمد صاحب کی. عبداللہ صاحب سب سے چھوٹا بیٹا، انہوں نے بولا میرا قربانی کر دو ابا جان. ٹھیک ہے. لیکن ان کا سب سے، عبد المطلب کا سب سے پیارا بیٹا ہے، انہوں نے وہ چیز نہیں مانا. پرسی میں 10 کا نام لکھا، نام لکھے، اور جو نام اس میں ایک اٹھایا اور عبد المطلب کا ہی نام آ گیا. تو وہ شاید 19-20 سال کا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو قربانی کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا. تو اس ٹائم بہت سارے وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بتایا. تب عرب کا ایک یار روایت تھا، ایک نہیں بیٹا یار، کی بس بدلہ یار، ایک بیٹا بہت کی لمبی. بدلہ 10 اونٹ کو قربانی کیا جاتا تھا. بھائی ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، بھائی ایک سیکنڈ، ہاں بھائی سنو. ایک سیکنڈ، بھائی ایک سیکنڈ. بہت لمبی کہانی ہوگی. ایک نہیں بیٹا کے ابھی تو بدلے 30 یار، سیکنڈ ہے اور صرف. یار صبر کر، 30 سیکنڈ نہیں بات. یار تم لوگ سنتے نہیں، کہانی دے صبر کرو. دیکھو، اگر آپ ایک بیٹا کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی بھی کر دو، اوکے، لیکن اس نے اپنے بیٹا کی قربانی کرنے کی کوشش کی، اور وہ بیٹا، اس کی بیٹیوں نے رو رو کے بولا کہ مت قربان کرو، ہاں یا نہ. پھر اونٹوں کی قربانی تک آئے تھے نا. سٹارٹ میں اپنے بیٹا کی قربانی کرنے کی کوشش کی، یس اور نو؟ ہاں وہی بیٹا کی ایگری ہوا. پھر عرب میں روایت تھا. آگے چل رکے. مطلب کیا نہیں ہے ایکسپلین مجھے بھی کرنے پتا نہیں ہے دو گے یار، آپ. صبر لے لے یار. کیا نہیں مجھے بھی پتا ہے، کیونکہ اگر نہیں کیا ہوتا تو محمد کیسے جمتا؟ عبداللہ کی قربانی کر رہا تھا تو محمد کیسے پیدا ہوتا؟ مجھے پتا نہیں کیا. اس نے اس کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی کیا بال خدا کے سامنے. کس خدا کے سامنے؟ بال کے سامنے نہیں کیا، اللہ کے سامنے کیا، جو خواب میں اگر دیکھا میں ان کے تمہیں سامنے. بال خدا کا نام دکھا دوں کیا کرو گے؟ مرو گے یہاں پہ. میں 3 چیز کو بلیو کرتا ہوں: صحیح مسلم، میں صحیح اگر تمہیں بخاری اور بتا دوں قرآن. تو صحیح مسلم صحیح بخاری میں تم مجھے یہ والی حدیث دکھا دو، میں مان لیتا ہوں.
क्योंकि ये हदीस है ही नहीं. अब ये डंगर, सही मुस्लिम सही बुखारी हदीस की किताबें हैं, ये हदीस नहीं है, हदीस से पहले है. इस वक्त मोहम्मद अभी पैदा भी नहीं हुआ हुआ, लेट अलोन कि उसको नबूवत मिल गई हो. हम आज हदीसों के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम आज हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं. सो डू नॉट टेल मी जी कि तुम सही बुखारी सही मुस्लिम पे यकीन करते हो. इट हैज ओके नथिंग टू डू विद दैट. हम हदीसों की ओके बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स. सो ये आप स्टुपिडिटी कर रहे हैं. नाउ अब्दुल मुत्तलिब ने बाल खुदा के सामने अपने बच्चे को कुर्बान करने की कोशिश की कि नहीं, ये बताएं. हाँ, इस बारे में मैं आपको 10 सेकंड लूंगा. 10 सेकंड ले लें. हाँ ठीक है. जब ऊँट की कुर्बानी आई कि एक ऊँट को बेटा की छोड़े, बदला उस टाइम पे कुर्बानी दिया जाता था 10 ऊँट. पर्ची में एक तरफ बेटा की नाम लिखे अब्दुल्ला, दूसरी तरफ ऊँट. पहला पर्ची निकला बेटा की नाम. ऐसा करते करते 100 ऊँट का कुर्बानी हुई. और ये 100 ऊँट जो ख्वाब देखा मतलब उनके ऊपर ही कुर्बानी किया गया, जहां तक मेरा नॉलेज है. ओ शायद भाई मैं गलत भी हो मैंने सकता हूँ. बताया खुदा का नाम क्या था उस टाइम पे, बाल था कि नहीं. बाल था, अल्लाह था, फिर और नहीं ऊजा अल्लाह था, नहीं, बुझा था, बाल बहुत था सारे कि था. नहीं, बाल था कि नहीं, अब बाल एक बुत था कि नहीं. हाँ, बाल भी बहुत बड़ा बुत था उस टाइम वहां की. शुक्र है. तो अब्दुल मुत्तलिब एक बुत की पूजा कर रहा था और वो बुत काबे के अंदर था और उसका नाम बाल था, हाँ या ना. हाँ ये बात सही है, बाल नाम की बुत था उस टाइम. शुक्र है यार, शुक्र है. तो इब्रा तो अब तो ये बेसिकली तो बुत परस्त हुआ ना मोहम्मद का दादा. हाँ वो मानते थे उसमें मतलब ओह आइडल थैंक वर्शिप गॉड. में, सो ओके, सो क्योंकि वो नाउ खादिम था वहां की. हाँ वो खादिम था. नाउ लुक हियर इज द थिंग. अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुतों को कहा, किसको कहा सुने, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुतों को कहा कि इब्राहा की हाथियों वाली फौज आई है, तू अपने घर को खुद बचा. अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुतों को कहा कि हाथियों की फौज आई है, तू अपने घर को खुद बचा. बुतों ने अबाबीलें भेजी और उस घर को बचा लिया. जब उस घर से तमाम बुत निकाल दिए गए, अब वो घर अल्लाह का हो गया है. उस वक्त कोई अल्लाह की अबाबील नहीं आई. पहली दफा भी मसमार किया गया मोहम्मद की वफात के 30 साल के 35 साल के बाद, और दूसरी दफा कुरमातियों ने तबाह किया. अल्लाह की कोई अबाबीलें नहीं आई. जब बुतों से मदद मांगी तो अबाबीलें आ गई, जब अल्लाह से मदद मांगी तो कोई अबाबील नहीं आई. ये बात आप मुझे समझा दें, ठीक है बात ठीक है, खत्म हो हाँ जाएगी. ठीक है. तो अब्राहम का जो मकसद फेल हो गया था, उसका वहां कोई जा नहीं रहा था तवाफ करने के लिए, तो उसने अटैक करने का प्लान किया. ठीक है. तो उस टाइम 6 का वहां के काफिला एक हो गया हाशमी का, और उनका मुकाबला करने के लिए गया, लेकिन वो हार गए. और अपना जो अब्दुल मुत्तलिब का ऊँट भी सारे वो उसने जब्त कर लिया, बाकी लोगों का भी किया. तो उसने बुलाया वहां के खादिम, अब्दुल मुत्तलिब गया उनके भाई पास. भाई 5 रुको ना, भाई 30 सेकंड बोला. इतनी हाँ कहानी किसी को चाहिए नहीं, असल मुद्दे पे आप नहीं आ रहे. कहानी तो कहानी अच्छा दे रहे ठीक हैं. है ठीक है. असल अब्दुल मुद्दा क्या है. मुत्तलिब ने, हाँ अबाबिल ने बोला अब्दुल क्या मुत्तलिब चाहिए. हुबाल सुनो या ना, बाल के सामने कुर्बान कर रहा था ना, और बाल की प्रस्तिश कर रहा था कि अल्लाह की कर रहा था. अब पॉइंट पॉइंट में आ गया मैं. सिर्फ अब्राहम बोला तुमको किस लिए आए, बोला मुझे मेरा 100 ऊँट दे दो. बोला तुम ऊँट के लिए आए, वहां के खादिम तुम्हारा, हम तो अटैक करने जा रहे हैं. वो बोला वो खुदा की गौर, वो खुद ही उसका हिफाजत करेगा. वो अपना ऊँट लेके निकल गए, जाके पहाड़ में जो साथी वगैरह लेके वहां बैठ गया. और फिर अब्राहम अटैक करने के लिए आगे बढ़ा. उस टाइम अबाबिल ने जाके पत्थर से अटैक किया, उसको पूरा भूसा की तरह, जो जानवर की खाना की तरह बना के वहां से भगा दिया, जहां तक मेरा नॉलेज हुई है. भाई मैं पागल हो जाऊंगा. ये सुन पढ़ लें आप, मैं यहाँ आपकी ये कहानियां सुन सुन के पागल हो जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे असल जवाब नहीं दे रहे. सवाल मेरा कुछ और है, जवाब आपका आप कुछ और है. 1 मिनट टाइम दोगे, मैं पूरा अच्छे से अबे एक्सप्लेन अभी भी तो करूंगा. 1 मिनट चाहिए. अच्छा ठीक है, कोई नहीं, 10 सेकंड दे दो हर सवाल में. तू 1 मिनट ले ले, लेकिन मुझे ये बता, क्या अब्दुल मुत्तलिब हुबाल खुदा की इबादत कर रहा था या अल्लाह की इबादत कर रहा था? प्लीज वो बता दे, तेरी मेहरबानी. तो उसने हुबाल खुदा से ही मांगना है जिसके सामने वो अपने बच्चे को कुर्बान कर रहा था, या अल्लाह से मांगना है? वो बता. उस मैं पागल हो उसका जाऊंगा, दीवार में टक्कर मार दूंगा, सर फूट जाएगा मेरा. उसका ख्वाब में एक इंसान ही आया है ना, वो बाल खुदा आया और उजवा भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, एक इंसान आया ख्वाब में. वो अल्लाह ने, खुदा नहीं भेजा है. लेकिन वो एक सामने वाला जो
वहां पे बहुत सारे बूत है, उनके सामने ही कुर्बानी किया, ये बात सच है। ओह भाई एडम निकाल दे इसको, यार मैं वही वही बचाऊंगा। भाई यार, अबे यार निकाल सुन, दो बोलते। आखिरी आखिरी बात कर रहा हूँ तेरे साथ। तूने जो बात की है ना, वो साबित हो गई है कि वो बुतों से ही पूजा कर रहा था, और वो बुतों से ही मांग रहा था, और बुतों से मांगते हुए और हुबाल के सामने कुर्बानी कर रहा था, तूने अभी कहा, और वहां पे बुत ही थे। उसके ख्वाब में जो भी आया, उसने आके उसे ये नहीं कहा होगा कि मैं अल्लाह हूँ, ठीक है? उसके ख्वाब में बुत ही आया, बुत का ही खुदा आया, उसने यही बताया होगा ना कि मैं खुदा हूँ। अब्दुल मुतलिब के मुताबिक खुदा कौन है? हुबाल, जिसके सामने वो कुर्बानी कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, हुबाल खुदा ने अपने काबा को बचा लिया, अल्लाह नहीं बचा सका, सिंपल सी बात है। और एडम अबू अब्दुल मुत्तलिब जो है वो काफिर था, मुशरिक था। इसकी दलील ये भी कि उसका बेटा अबू तालिब जो था वो भी काफिर और मुशरिक ही था, और वो हदीसों से पता चलता है बुखारी की मुशरिक ही मरा। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से अब्दुल्लाह और अब्दुल मुतलिब दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? जहन्नम में हैं, क्योंकि मोहम्मद ने बोला कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों जहन्नम में हैं। बात खत्म। मोहम्मद की सही बुखारी की पता नहीं कौन सी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है मेरे ख्याल में, कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों के दोनों जहन्नम में, माई फादर इज योर फादर, दे आर बोथ इन हेल, फुल स्टॉप। तो फ्री थिंकर साहब, आपने मेरी बात को 100% एग्री कर दिया है, ठीक है, कि बुत ज्यादा ताकतवर अ, है अल्लाह मियाँ से। नहीं, जो सही पहले मुस्लिम की वाले खुदा को, हदीस अच्छा ठीक है, उसमें अल्लाह आलम, शायद आप भी सही मैं भी सही, उसमें मैं बहस नहीं करूंगा। उससे आगे कोई दूसरा टॉपिक में अगर आप बात करो, ओके, ठीक है। अब आप छोड़ दें ताकि बाकी लोगों से बात करेंगे फिर क्योंकि आपने कह दिया दूसरे वो टॉपिक पे हाथी बात करें। वाला पानी का क्लियर कर दे, जो हाथी का। कोई बात नहीं, अब आप जाएं, बाकी लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप आए, आपका बहुत बहुत एडम धन्यवाद है। एडम ब्रदर प्लीज एक रिक्वेस्ट करूं, एडम मेरी जी बात सर, सुन सर एक मिनट। सर हुक्म, सर हुक्म, सर यार हुक्म। प्लीज यार, ये प्राइवेट चैट से इस्माइल को हटा दे, देख कितने सारे कोई लिंक्स बात स्पैम यार, कर रहा है आप ना ब्रदर पढ़े ये फालतू। प्राइवेट चैट, कर्नाटका आप में ना ना एक पढ़े प्राइवेट चैट, आप ना पढ़े, देखिए डोंट पढ़े। ब्रदर, कर्नाटका में ना बजरंग दल वालों ने क्रिश्चियन लोगों को मार दिया और बाइबल जला दी। प्लीज ओके रीड दिस मैसेज, ओके, प्लीज सेव अस। जी 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 इस्माइल साहब, ओके। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस्माइल साहब? प्लीज सेव अस, प्लीज उसमें बोलो भाई, प्लीज बोलो। ओके, नहीं जी, इस्माइल साहब हमारे पास आए हैं कि कोई बजरंग बली वालों ने किसी चर्च को आग लगा दी। बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं जिन्होंने उस चर्च को आग लगा दी, बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं जिन्होंने कर दिया, लेकिन आप मुझे मत करें, प्लीज सेव अस, नंबर वन। नंबर टू, खुदा ने बाइबल में कहीं नहीं कहा कि मैं तुम लोग बताऊंगा, बल्कि खुदा ने कहा है कि जो लोग मुझे परसिक्यूट कर रहे हैं वो तुम्हें भी परसिक्यूट करेंगे। क्रिश्चियनिटी परसिक्यूशन के अंदर सरवाइव नहीं, थ्राइव करती है, थ्राइव करती है, दैट्स द होल थिंग। क्रिश्चियनिटी परसिक्यूशन में सरवाइव नहीं करती, थ्राइव करती है। एंड थर्ड थिंग, क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे यीशु मसीह ने कहा हो ये मेरा घर है, आओ इधर ही आओ, हर साल इसका जो है ना तवाफ करो, नहीं कहा। तो इस्माइल साहब, आप फॉल्स इक्विवेलेंट ना लेके आए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्लाह के घर की, जहां पे आपको हर साल जाना है अगर आप साहिब हैसियत है। तो फॉल्स इक्विवेलेंस ना लेके आए। जो लोग बुरे हैं वो बुरे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, डज नॉट मैटर कि वो किस चीज को फॉलो करते हैं। बुरे लोग हर जगह पे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्लाह की। अगर एक मुसलमान कलमा गो यजीद, वो खाना काबा पे हमला करके तोड़ सकता है, और आप लोग उसे मुसलमान नहीं मानते ना यजीद को, लेकिन कलमा गो तो था। सेम इज द केस, अगर किसी ने चर्च पे हमला किया, चाहे वो किसी भी बजरंग बली या जो बदी जिसमें से भी हो, आई डू नॉट केयर, दे आर बैड पीपल, दे आर रॉन्ग पीपल। दिस इज हाउ आई लुक इट। नाउ कम टू द पॉइंट इस्माइल, अगर आपने आज के पॉइंट पे बात करनी है तो आपको आंसर मिल गया। नाउ अब मुझे ये बता दीजिए सर कि आपके अल्लाह मियां ने कुरमाती को क्या सजा दी, अबू ताहिर अल कुरमाती को, वो बताइए। ये कुर्माती कौन थे? पहले तो मेरे को ये हदीस आप बोल रहे हैं, मेरे को हदीस इसके है ही बारे नहीं, में किसने नहीं क्या पता। हदीस है, ये हिस्ट्री है। मोहम्मद साहब को मरे हुए इस वक्त 350 साल हो चुके हैं जब कुरमाती पैदा हुआ। हदीस कौन सी है? ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको। तो हिस्ट्री में क्या लिखा है, आप क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? मतलब आपको क्या इससे इतनी प्रॉब्लम देर है? से आपको पता नहीं लगा? कुरमाती आया, उसने हाँ। आके
काबे को निस्तो नाबूद किया, हजर असवद को अपने साथ ले गया, उसको टट्टी करने वाली जगह में बाथरूम में रखा, उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े के ऊपर अपना सीधा पांव रखता था, दूसरे टुकड़े पर अपना उल्टा पांव रखता था और टट्टी करता था 22 साल तक। ओके। और अल्लाह मियां ने अल्लाह और 7 साल तक 7 साल तक काबे का तवाफ और हज ही नहीं हुआ। 7 साल बाद हज और उम्रा हुआ और लोग हजर असवद नहीं था वहां पे। 7 साल तक उसने हज भी रोक दिया। 22 साल तक वो अपने पास रखा, मैंगो कुछ भी नहीं हुआ, क्या करें? हाँ, तो यही तो है, जैसा आपने बोला कि क्रिश्चियनिटी थ्राइव करती है जुल्म और क्रिश्चियनिटी की यहाँ ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंपैरिजन ऐसे हो ही रहा है कि जिस वक्त इस्लाम भी उसके बाद थ्राइव किया है। आपको पता होगा कि इस्लाम उस टाइम एक पे सेकेंड सिर्फ सर, इस्माइल हजारों लाखों लोगों का था, आज इस्माइल साहब, प्रॉब्लम ये नहीं है। 300 अरब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा जब लोग। खाना काबा में 360 बुत थे तो अल्लाह मियां ने अपनी अबाबीलें भेज दी पत्थरों के साथ और अपने काबे को बचा लिया। जब खाना काबा को क्लीन कर दिया बुतों से, उसके बाद क्या हुआ है? उसके हाँ, बाद कुरमाती आया और सब कुछ कर गया। उस वक्त किधर गई वो अल्लाह मियां की अबाबीलें? दैट्स द ये क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन का आंसर है। जितना जुल्म होगा उतना ऊपर जाएगा इस्लाम, जैसा आपने कहा क्रिश्चियनिटी में, जितना जुल्म वैसे होगा उतना इस्लाम में ऊपर नहीं होता है। जाएगा देखिए आज इस्लाम। 1100 साल बाद 250 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है। ओ भाई, और भाई एक सेकंड इस्माइल, स्टूपिड बात नहीं करो, मुझे उस कंपैरिजन में उधर जा ही नहीं रहा। मेरा सवाल सिंपल है, अल्लाह मियां ने कहीं नहीं कहा मुसलमानों तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा। दैट्स स्टूपिडिटी टू गिव यू द आंसर। अल्लाह मियां ने कुरान में कहा जाओ लोगों के साथ कत्लो किताल करो, लड़ाई करो, ये अल्लाह मियां ने कहा। सो आज का टॉपिक उस पे नहीं है, किसी और दिन उस पे बात करेंगे। मैं इस टॉपिक को याद रखूंगा, नेक्स्ट वीकेंड पे आना, मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। आज सिंपल क्वेश्चन है, अल्लाह मियां ने अपने बुतों से भरे काबा को बचा लिया और अबाबीलें भेज दी पत्थरों के साथ। अबू ताहिर कुरमाती ने जब अटैक किया, अल्लाह मियां सो रहे थे, किधर गए अल्लाह मियां, वो बताएं। आई थिंक एक आयत पड़ी होगी, सब्र अल्लाह, यानी कि सब्र करने वाले को हमेशा हक मिलता है। तो इसमें सब्र किया और फिर उसके बाद हमें हक मिला। एक तो ये बात यह आप है कि देख आपको लीजिए। एक तो बात यह है कि आपको आयत भी नहीं पता। सबर ये नहीं है इन अल्लाह मास साबिरीन है, आपको देखिए अरबी आपको की आती है अलीबे पे नहीं माशाल्लाह। पता। अब मैं नाउ कोई लेट मी समझ टेल तो यू लिया दैट अब। उस हाँ, आयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। माय सिंपल क्वेश्चन, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, 1000वीं दफा बोल रहा हूँ प्रॉब्ली। मैं एक्चुअल में एब्राहमिक रिलीजन फॉलो करता हूँ, लाइक इस्लाम। गेट लॉस्ट, यू आर स्टूपिड डेमोनिक इडियट, सन ऑफ अ गन। एब्राहमिक रिलीजन, अभी लास्ट वीकेंड पे मैंने साबित किया था कि इस्लाम इज नॉट एन एब्राहमिक रिलीजन बट रादर इट्स एन एब्राहमिक कल्ट। Anybody who says Abrahamic religion should not come to my channel at all, should leave my channel and get lost from here. हाँ जी, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। साजिद साहब, आप ये एक बूढ़ी औरत की शक्ल लगा के क्यों आए हैं? जरा साजिद साहब आप ये बताएं। जी, मुझे मदर टेरेसा ने जो खिदमत की है इंसानियत के नाते, उससे मैं काफी एग्री करता आप मुसलमान हैं, आपको मदर तेरेसा पे जाने की जरूरत नहीं है। हूँ। अरे ये अपने साजिद भाई हैं हूँ। अपने यार। साजिद भाई हैं यार, एडम भाई। अच्छा मुस्लिम यार, साजिद भाई फॉरगेट दैट यार, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मदर तेरेसा राइट नाउ। ओके जी, एमजे जी आप दोबारा वापस आए, हुक्म करें। आज मैं पूछ रहा बताएंगे था अबू ताहिर कुरमाती साहब के और अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम साहब काफी देर से खामोश है, सॉरी, एमजे से बाद में बात करेंगे। अब्दुल करीम साहब आप काफी देर से खामोश हैं सर, आप मोमिन हैं? अब्दुल करीम अनम्यूट कीजिए। जी हाँ बोलिए। सर सवाल आपको पता है, मुद्दे आपको आपका पता जो है, ये काफी जो देर से बैठे सवाल हुए है हैं। ना, जी सर। हाँ बिल्कुल 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 मैं सुन ही रहा हूँ। आपने दो वाकया बोला, एक तो पहले आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का वाकया बोला जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वक्त का वाकया था, ठीक है, नबुवत से पहले का, ठीक है। इस वाकया को तो आप मानते हैं ना कि नहीं मानते? इररिलेवेंट अपना हेलो पॉइंट एडम बताओ। भाई, मैं कुरान बताता हूँ, में पहले है आप ना, बताओ कुरान में है ना, तो आप मानते हैं तो कि नहीं मानते? इस मुसलमान वाकया को मानते हैं मानते ना। हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा, तो आप भी मानते होंगे। हिस्ट्री में कहीं नहीं है, हाँ कुरान ना, में तो है कुछ सिर्फ। बोल दो। हिस्ट्री में नहीं है, अब हिस्ट्री में कुरान कहीं में, नहीं है यही आप मान रहे हो तो? जो चलो आप बिलीव कुरान में है करते तो हो मानना कुरान में पड़ेगा ना, है ना? कुरान में ठीक है है, तो चलो मानना पड़ेगा मानते ना। हैं। और दूसरा वाकया है पोर्ट टाइम बादशाह 320 के बाद, यही आप बोल रहे हो, है यार ना? प्लीज अपना पॉइंट रख के मुझे सवाल ना करें, मैंने कुरान बता दिया में बहुत दफा। एक आयत आई है जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया है कि मैं आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर
तब तक अजाब नहीं भेजूंगा तब तक कि आप मौजूद हैं, ठीक है? आयत दिखा दें, है, ऑलरेडी है, आपको आयत दिखा पता ही दें, होगा। आयत दिखा दें, है भाई। आयत दिखा दें, आप बात खत्म हो जाएगी। चलो सबर करो, देखता हूँ, खोज रहा हूँ, रुको। यार आप घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक जो आपने अपनी हुज्जतें हैं उसको खोज के रखा ही नहीं हुआ था। चलिए आप खोजें अपने आप को म्यूट करके। एमजे साहब आपकी फाइनल हुज्जत बिफोर हम किसी और मोमिन को दें। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप अभी जो ऊपर किसी से बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब बाल नामी बुत की इबादत करते थे। आप थोड़ा मुझे बता देंगे कहाँ लिखा है वो? हर जगह पे लिखा, है हर जगह पे लिखा, हर जगह? कोई से भी, एक जगह दिखा कोई, दो। ओके एक जगह मांगी है आपने, ये देख लें। अब्दुल मुत्तलिब vowed to Hubal. Now beside Hubal there were 7 arrows, each of them containing some word. He was worshipping बस Hubal. Please. हिंदी उर्दू होती। इसमें उर्दू नहीं है मेरे पास, ये भाई सीरत नबी इब्ने इसहाक है, उर्दू में खुद पढ़ लेना। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो आपको अम्ब का भी नहीं पता। आप मेरे साथ डिबेट क्या कर रहे हैं? भाई मैंगो भाई यार मोहम्मद ने खुद नबूवत ऐलान किया था 40 साल के बाद। इस्लाम 40 साल के बाद आया था उनके पैदा होने के। और अबू मुतल्लिब कब इंतकाल हुआ उनका? यार छोड़ दे इस बात को। हुबाल नजर आ गया आपको? हाँ, आगे बढ़। हुबाल पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ओके थैंक यू। तो हुबाल के सामने ही कुर्बान कर रहा था ना वो। आगे चलना। आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, बस हुबाल की बात हो रही है ना। हुबाल फिर आगे क्या है? देर। हाँ, when they disputed about who should pay the blood with, Lot came 7 arrow, whom he had Lot, another marked yes, another marked accordingly, and the Lot was always coming for what? Abdullah. Said the work, they wanted to circumcise the boy to make marriage or blood. And they took him to Hubal with 100 dirham and a slaughter a camel and gave him to the man who cased Lot and etc. etc. ये वही है कहानी। लाट ड्रा किया गया, हर दफा अब्दुल मुतलिब ने किसका लाट आया? अब्दुल्लाह का लाट आया। अब्दुल्लाह को वो कुर्बान नहीं करना चाह रहा था, फिर उसने किसको कुर्बान किया? 100 कैमल्स को। ये कहानी है पूरी। जगह जगह हुबाल का जिक्र है। तुमने कहा एक जगह दिखा दो, मैंने एक जगह दिखा दी। और बताओ। तुमने वो उर्दू वाला खोला था, वो निकालो। अबे और डंगर, तुमने क्या हुबाल दिखाओ, मैं तुम्हें दिखा दिया हुबाल यहाँ पे, बात खत्म हो गई। हाँ, आप बताओ आगे क्या है? एक जगह बोली थी ना और मैं तुम बोल रहा हूँ ना, वो उर्दू वाला दिखाओ। वो तबकात इब्ने साद है, ये सीरत नबी इब्ने इसहाक है। तबकात इब्ने साद में नहीं लिखा हुआ हुबाल का लफ्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है। बोलो। उसमें नहीं लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना। और उसमें नहीं लिखा है ना? अबे उससे फर्क क्या पड़ता है? दोनों में से सच्चा कौन है? अबे ओ यार एक सेकंड, एवरीवन शुड लिसन। एक जगह पे हुबाल का नाम नहीं लिखा, मल्टीपल अदर जगहों के ऊपर हुबाल का नाम लिखा, बाल का नाम लिखा। सच्चा कौन है? अल्लाह की तो इबादत हो नहीं रही थी। जब वहां पे 360 बुत थे तो अल्लाह की इबादत कौन कर रहा था? इसका प्यो कर रहा था, एमजे का। मुझे इस किस्म के लोगों से बात करके मुझे समझ नहीं आती यार। मैं अपना दिमाग यार यार मुझे बताओ यार, ये पोस्टेड माम में अपना सर कहाँ मारूं यार? खाना खा लो शान भाई, शान पहले पानी पी लो यार। हजूर पानी पी लो खाना खा यार। लो, पानी पी लो यार तुम। खाना खा लो उससे पहले। शान शान यार मुझे समझ नहीं आती, मैं अपना अपना सर दीवार में मारूं या क्या करूं? इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही यार? यार आप बात करें एमजे से, मैं ये चुप हूँ यार। ये आप लोग बात करें, ये ले एमजे से। भाई पहले खाना खा लो, ये काय को उनके चक्कर परेशान हो रहे। मैं खान चिप्स जब खा रहा हूँ। यही अबराहा मेरा आया, हाल राहुल अमीन ने कर दिया था भाई। राहुल अमीन ने पूरा सरदर्द की गोली खाई थी। जीशान भी आया था उस डिबेट में तो। वो हेलो, राहुल पे बात ना करो, मुझे बड़ा गुस्सा है तुम पे। उस बारे में अकेले में बात करूंगा उसमें। बहुत मोहम्मद गुस्सा है। सलाम। तुमने राहुल की टट्टी कर सकते थे वहां पे, तुमने नहीं की। उसकी पोटी निकल जानी चाहिए थी पेंट में, जितनी अच्छा तुमने पॉइंट उठाया था। लेकिन उस पॉइंट को तुमने डिफेंड नहीं किया प्रॉपर्ली। लेकिन नहीं आओ, राहुल कभी आया ना मेरे चैनल पे, देखेंगे मैं उसी पॉइंट को लेके आऊंगा। इमाम मैं उसे पकड़ के ले आऊंगा फिर से कोई। जब अबराहा आया तो अब्दुल मुत्तलिब उसके पास क्या बात लेकर गया था? ये भी क्या बात लेके गया, बता दें मुझे, रेफरेंस दे दे, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हैं?
तफसीर खोल ना, पता होगा तुझे, इब्ने कसीर की तफसीर खोल। भाई यार आप थोड़ा सा तमीज से पेश आ जाएं उनसे, वो आपसे आप मेरे बात कर आपसे बात कर रहे हैं उनसे। नहीं, वो अकर से बात कर रहा हूँ, मैं भी अकर से बात कर रहा हूँ, मैं भी पहले वो तमीज से बात। अभी इतने प्यार से बात कर रहे थे सर आपसे, आप मेरे बात कर रहे थे, दिखाएं ये करें वो करें ऐसे करके बात कर रहे हैं, आप उनका कह रहे दिखा ये वो। भाई थोड़ा तमीज ला ले यार प्लीज अपने दिखा दिया इनसे। ना सीरत इब्न हिशाम में उसने हुबल का नाम। अले अलम तौरा की तफसीर निकाल भाई, कौन सी वाली बोल। इब्ने कसीर। ओके, तुम्हारे पास लिंक है वो निकाल दो, मैं वो दे देता हूँ। हाँ, मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? क्यों नहीं है? तुम्हारे पास तो होनी चाहिए ना क्या? तफसीर। तो मेरे मोबाइल में, तो मैं इसमें थोड़ी बोल सकता हूँ, निकलने जाऊंगा तो मेरा चैनल से निकल जाऊंगा। ओके, इस हाँ। वक्त equranlibrary.com वाली वेबसाइट जो है ना नहीं खुल रही, वरना तो इब्ने कसीर से मैं तुम्हारे लोगों की वो वजाता होता हूँ जिसकी इंतहा कोई नहीं। यार कोई अच्छा, और वेबसाइट है जहाँ पे इब्ने कसीर की हदीस खुल जाए? अपना रुक इमाम जाओ, quran.com पे है आइटम, एक सेकंड। कुरान कुरान डॉट इब्न कॉम पे कसीर आधा में निकाल क्या लिया था। खोलना है? कुरान को खोल दे। चलो ऐसा करते हैं, ये खोलते हैं अल तफसीर, एक सेकंड, अल तफसीर डॉट कॉम, मैं वहां अल पे तफसीर जाता पे इब्न कसीर शायद नहीं है आइटम। है, अरबी में है तफसीर। अरे अरबी छोड़ो, मैं तुम्हें लिंक सेंड कर रहा हूँ प्राइवेट में, उसमें जोन सा तुम्हें रेफरेंस चाहिए ब्राउज कर लो। तफसीर इब्न कसीर मौसूअतुल कुरान वल हदीस में है भाई। सर वेबसाइट का लिंक दे दें प्राइवेट चैट में, क्योंकि जिस मैंने वेबसाइट में प्राइवेट मैं में जाता भेज हूँ वो दिया। नहीं है। वैसे वो सूरह आल इमरान ओके, की आयत 28 की तफसीर खुल जाएगी, बट तुम नेविगेट कर मैं दो खोल जो लेता हूँ, तुम्हें खोलना है। मैं खोल लेता हूँ। अच्छा जी, 105 की एक, ओके जी 105 की एक आ जाती है अभी। ओके, सूरतुल फील लिखा तफसीर इब्न कसीर लिखे तो मौसूअतुल कुरान वल हदीस की तफसीर खुल जाएगी भाईजान। भाईजान या तो लिंक भेज दें या फिर चुप कर जाएं। असली में मैं पीसी तो नहीं चला रहा हूँ ना, इसलिए मैं नहीं लिंक अरे कर सकता। तो साजिद तुम पानी पी लो पहले जाओ। तो वही मामला है कि आइटम भाई बोलने नहीं देते ना यार, लबर बोल लेते इसीलिए अभी भी मैं मैं बोलने पान नहीं दे मसाला रहा, खा के बैठा हूँ, अभी भी मैं बोलने नहीं दे सुनता रहा, हूँ। हम्म अभी भी मैं बोलने नहीं दे रहा। हम्म। आप बोलते रहे, सीखने को मिल रहा है, हम लोग खामोश है। ओके, ये कौन बोल रहा था अभी? अरे अपने साजिद भाई थे। साजिद भाई आप यार क्या करते हैं यार? यार यहाँ पे अपने कसीर में नहीं है यार उसकी, तुमने जो लिंक भेजा है वो मैं 105 पे गया हूँ, वहाँ पे नहीं निकल रही पोस्टेड अमाउंट, उसी को दे दो। मेरी जो अपनी वेबसाइट है ना क्या जिसपे मैं खोला है? हमेशा जाता सूरह हूँ और वो नहीं। आयत को बताओ जिसकी कमेंट्री खोलना है। 105 सूरह की फील एक। की, हाँ, सूरह फील की आयत 105। नहीं सूरा फील अरे का पागल, इतनी नंबर है आयत ही नहीं है उसमें। 105, उसकी आयत एक, एक में ही सब कुछ होगा, पहली एक आयत में सब कुछ सेकंड, होगा। एक सेकंड, आपको प्राइवेट एक सेकंड, में शेयर आलिम कर। डॉट ऑर्ग में चले जाते हैं, रुक जाए, ALIM आलिम डॉट ऑर्ग में चले जाते हैं, एक सेकंड जी, इस वेबसाइट में चले जाते हैं। असल में आज ये हुआ है कि जो वेबसाइट है जिसपे मैं हमेशा जाता हूँ वो वेबसाइट जो है ना मुस्लिमों ने रोक दी है, उसके ऊपर वो चेंजेस कर रहे होंगे इसी तरह ताकि मुस्लिमों को डिसीव कर सके मजीद, वो चेंज कर रहे हैं उसको। एडम अपन अपन उसकी आर्काइव बना लेते हैं, वरना ताकि वो कुछ उसमें अपडेट नहीं कर दें। इब्लीस जो है वो गुजरात में बैठा हुआ है यार, इब्लीस तो गुजरात क्या कर रहा है यार। ओके जी, इब्ने कतीर सूरह 105 एक। ओके, a summary of the story of the people of elephant. This story is for the people of the elephant in the belief in summary that really mention the story of the people of ditch and the last king of Hamaria. जी क्या पढ़ना है सर इसमें? अशाम, we started protection Caesar, अशाम की बात आ गई, वहां से आया Ethiopian king Abbasian, ठीक है, army entered Yemen, began doing this। क्या पढ़ना है इसमें वो बताएं। उर्दू निकाले तो बताऊं भाई, या उर्दू, हिंदी निकाल? उर्दू नहीं है, तू वेबसाइट है उर्दू वाली नहीं है, ये इब्न कसीर है इंग्लिश में, बोल। हाँ तो वो वाक्य निकाल कि अब्दुल मुत्तलिब जाके क्या बोले उसके अब्राहम को अब्राहा काबा को के कुछ बाद। नहीं बोले वो। तो बोल रहा था ना कि भाई मैं उबाल को, ये उबाल का, ये उबाल है ना, ये है अब्राहा जंग यार देख लड़ने आया बात है सुन, तो यहाँ तो अपनी हुज्जत ले आ, तूने वहां पे दिखाना होगा कि ट्रांसलेशन में या किसी जगह पे लिखा होगा कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा, बस ये दिखाना होगा तूने अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से जाके कहा कि अल्लाह कि अपने ये घर की अल्लाह, हिफाजत खुद करेगा। हाँ मुझे मेरे ऊँट दे दे। बस ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा, तो अल्लाह तो मून गॉड था ना, अल्लाह
دی لا, تو اس وقت کی جو عربی ہے اس کے مطابق تو اللہ ایک مون گوڈ تھا, اور اللہ کی ایک بیوی تھی اللات, اور اس کا 2 بچیاں تھی اچھا المنات, اور یہ سب کچھ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں نا, اس سے پہلے اللہ ایک مون گوڈ ہاں تھا, اللات تھی, العزا تھی, اور المنات تھی. اللات جو ہے وہ اللہ اللہ کی بیوی تھی, اور العزا اور المنات جو ہے ان کے بچے تھے. اس میں کیا ٹینشن ہے؟ میں تو اس وقت اب بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں, آپ سر کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی بات بتائیں. اللات, المنات اور العزا, it has nothing to do with pre, یعنی بات کی after بات اسلام. ہم پری اسلامی کی بات ہاں کریں یہاں پہ. آخر میں ہا آتا ہے, ہ ہ ایچ ناٹ ٹی. اللہ کی بات اوکے, نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا اچھا, ہوں. پھر ایسا کریں, ایک مجھے سمپل سا سوال کر دیں, جواب دے دیں. جب وہ عبداللہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی قربانی کر رہا تھا حبال کے سامنے, تو اللہ کے سامنے کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اللہ کے سامنے کر رہے تھے. چلے مجھے ریفرنس دے دے کہاں پہ اللہ کے سامنے کر رہا تھا. نمبر 1. نمبر 2, اس کا مطلب ہے اللہ ایک انتہائی شیطانی خدا ہے کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے سامنے اپنے بچوں کی قربانیاں کر رہے ہوتے تھے, رائٹ؟ اب تو نے ریفرنس مانگا نا, تو نہیں نہیں, ریفرنس کے اب پہلے اندر یہ بتا دینا کہ اللہ کے سامنے اپنے, مانگا. اللہ کے سامنے محمد کے آنے سے پہلے لوگ اللہ کے سامنے اپنے بچوں کی قربانیاں کر رہے تھے, رائٹ؟ بہترین. لو جی, آپ سب نے سن اللہ لیا. اللہ جو ہے وہ قربانیاں مانگتا تھا, انسانی قربانی مانگتا تھا محمد کے آنے سے پہلے. سب لوگوں نے سن لیا سر. ہاں, تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ مانگتا تھا ماشاء قربانی؟ اللہ ماشاء اللہ. ریفرنس دے بھائی, کہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ میں پہلے قربانیاں مانگتا تھا؟ لوگ کر رہے تھے نا, کیوں کر رہے تو تھے؟ کر رہے تھے تب کہ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا نہیں تھا ابراہیم کو اپنے بچے کی قربانی کر دے؟ ہیں؟ اللہ نے ابراہیم سے اپنے بچے کی قربانی نہیں مانگی تھی؟ ہاں, پھر مانگی تھی نا. اس کے بعد کس سے مانگی مانگی؟ تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ پہلے یہ بتا. ہاں, تو اس کا فدیے میں بھیڑ کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ نہیں, نہیں بھیجا بھیڑ کو. قرآن سے ثابت کر دے بھیڑ کو بھیجا. کیا وہ فقہ کیا ہے وہ ہاں, بتا ذبیح عظیم کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اللہ نے ذبیح العظیم دے دی, بھیڑ کہاں پہ آئی وہاں پہ؟ ذبیح عظیم کا کیا مطلب کیا بھیڑ کب آئی؟ ہے ذبیح عظیم کا کیا مطلب؟ بھیڑ کہ اللہ ذبیح العظیم ہے. تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پہ ان کے فدیہ دے دیا. کس چیز لڑکی کا؟ کی قربانی اس کس چیز چیز کے کا؟ بدل کر بھیڑ دے دی. بھیڑ کب دی ہے؟ قرآن میں تو نہیں بھیڑ دی. اللہ نے شاید اپنا بچہ بیچا ہو خود. اللہ کی اللات بھی ہے نا, العزا بھی ہے, المنات بھی ہے نا. یار بکواس نہیں کی اگر میرے ساتھ. آپ جیسے حجتوں والے لوگ جو ہے نا, ان کے ساتھ میں بڑا اچھا کھیل لیتا ہوں 4-4 5-5 گھنٹے, لیکن آج جو ہے نا میرا دل نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ کھیلنے کا.